Let's begin with some breaking news that we are getting for you at this point in time, and we are getting you visuals from Uttar Pradesh, where bulldozer action is currently underway at Changur Baba's residence, who was arrested on charges of running a network of illegal conversion and is now said to be the owner of properties worth 100 crore rupees. Investigation by ATS has revealed that transactions worth more than 100 crore rupees have taken place in the accounts linked to Changur Baba and his institution. ATS has prepared a detailed report of this act, and that has been given to the Enforcement Directorate as well, and now investigation can be done in this case under the Money Laundering Act. Let me straight away now go across to my colleague Adeep joining us on the broadcast for more on this. Adeep, give us more details. We are getting visuals of bulldozer action that's currently underway. We'll definitely see Jalaluddin, who is also known as Changur Baba. He was arrested by STF on Saturday this week, and after his arrest, the STF and ATS through the investigation came to know about the illegal properties of this particular man, Jalaluddin. He has over 14 properties in Balrampur, which is said to be of around 100 crore rupees, and now the bulldozer action is taking place on his properties, which is of around 100 crores. ATS and the STF both have prepared a detailed report, and now what they are यहाँ पर पता चला कि विदेशी फंड एक साल में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई हैं। तो ये भी एक बड़ा आरोप है कि एक साल के अंदर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गई, और ये सब कुछ खरीदारी फंडिंग से हुई। विदेशी फंडिंग के जरिए ये अवैध संपत्तियों को खरीदा गया, अवैध निर्माण कराए गए। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं इसके पूछताछ में, वो बड़ा हैरान करने वाले हैं। खुलासा तो ये भी है कि उसने बकायदा एक किताब भी लिखी थी जिसे शिजरे तैयबा के नाम से जाना जाता है। ये किताब उसने छपवाई थी, जिसका उपयोग वह और उसके सदस्य जो थे, जितने गिरोह के लोग थे, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और ब्रेन वॉश में करते थे। यानी कि लोगों को धर्मांतरण से पहले शिजरे तैयबा नाम की किताब भी दी जाती थी, जिन्हें पढ़ना उनके लिए जरूरी होता था, क्योंकि इसमें बताया जाता था कि इस्लाम धर्म में क्या कुछ खासियत है, क्यों आपको इस्लाम धर्म कबूल करना चाहिए। दुनिया का सबसे पुराना धर्म इसे बताया जाता था, उसकी खूबियां जाती थी और लोगों को प्रेरित किया जाता था, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। इसीलिए शिजरे तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी इस जलालुद्दीन पीर बाबा ने, और उसने जो है पूरी तरीके से जो धर्मांतरण का रैकेट था वो यहीं से संचालित कर रहा था। पिछले कुछ सालों से लगातार वो यहाँ पे रह रहा था। हालांकि उसकी हैसियतें बहुत थी। उसने न सिर्फ वो एक पीर के तौर पर अपनी पहचान बनाया था, जिसकी वजह से उसे पीर बाबा कहते थे, बल्कि उसने जो है पॉलिटिकल आकांक्षाएं भी थी। उसने खुद भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, अपने बेटे को भी चुनाव लड़वाया था, लेकिन जो सियासी मंसूबा था वो कामयाब उसका नहीं हो पाया था। लिहाजा वो जो है अब एक पीर के तौर पर यहाँ पे रहता था, अपनी पहचान बनाया हुआ था, और धर्मांतरण का अवैध खेल जो है वो यहीं से चल रहा था। यहीं उसका जो बेटा महबूब है वो भी यहाँ पे उसके साथ रहता था। 2024 में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। So that was some more information that we were getting for you. This particular case is concerned, my colleague getting us what exactly is happening on the ground. So it was an illegal conversion racket that has been busted, and now what we are getting to know is the bulldozer action that is currently underway. Let me go back to my colleague Adeep, who continues to be with us at this point in time. Adeep, so this action is being taken after the probe by UP ATS. Foreign funding is under the scanner. ED is also now, we are being told, likely to be looking at the money laundering angle in this particular case. But take us through what's really happening. How many properties really are we talking about, and what next in this case? I will see the ATS earlier this week on Saturday arrested Changur Baba, who is also known as Jalaluddin, from the Balrampur district. And what we are being told by the sources in the Uttar Pradesh police is that they have prepared a detailed report, and these reports have been prepared by both the agencies, STF and ATS, and now they are going to submit these reports to ED so that they can investigate into the money laundering cases of Jalaluddin. But what we are talking about is around 14 properties that are situated in the Balrampur district, and the bulldozer action is being taken on these properties
in Balrampur district only. Right now in Uttar Pradesh, where these properties are located, there are multiple bulldozers that are being run on his illegal properties. The government says that all these properties are illegal, and he did not have any proper documents or paperwork for these properties, and these properties were located in a remote area of Balrampur. And since after his arrest, all the details have come to fore in the front of government, and now the government is taking action against these illegal properties in Balrampur. So what we are talking about is properties worth around 100 crores in Balrampur district, on which the bulldozer action is being taken by the Uttar Pradesh government. Jalaluddin was running a network of illegal religious conversion. There were many survivors, there were many victims who came to fore after his arrest. When the UP ATS made the arrest, there were many survivors who came to UP police from different districts, claiming that they were the victim of Jalaluddin. They fell into his trap. They fell into his trap of illegal religious conversion. Now the ATS is going to add all these statements to the investigation, so that they can prepare a charge sheet against him and prepare and file these charge sheets in the court. As of now, the ATS is also looking into his network, that how many people were associated with Jalaluddin in this illegal religious conversion racket, and all the people who are helping him are on the radar of ATS and STF as well, Hira. Right, so that's an important point you're making. As the action is currently underway, those are the first set of visuals that we are getting for you. Adib, request you to stay on with us. We have Vinod Mishra, my colleague, who is live with us from the spot where this bulldozer action is underway. He's joining us live right now. विनोद मिश्रा, हमें बताइए कि अभी जो आप आसपास देख रहे हैं, थोड़ा समझाइए कि क्या-क्या हो रहा है. अदीप हमें बता रहे थे कि लगभग 14 प्रॉपर्टीज जो है वो 14 की 14 इस पूरे मामले से जो जुड़ी हुई हैं, सब पे बुलडोजर एक्शन होने वाला है, सभी को डिमोलिश कर दिया जाएगा. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि कल ही प्रशासन ने यहाँ पर बकायदा जो है नोटिस लगाया था. एक बार तस्वीरें पहले मेन गेट की दिखाते हैं. देखिए मेन गेट है यहाँ पे, और यहाँ से यहीं पे एक पोस्टर, एक नोटिस लगाया गया था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है, और उसके बाद यहाँ पे अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया गया तो एक्शन होगा. और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया. ये देखिए 3 बुलडोजर आपको दिखाएं, 1, 1, 2 और 3, ये 3 बुलडोजर एक साथ एक्शन में है. तीनों बुलडोजर जो है लगातार इस बिल्डिंग को बुलडोज करने में जुटे हुए हैं. पिछले 1.5 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट हो गया, लगातार 3 बुलडोजर जो है इस पूरे एरिया को डिमोलिश कर रहे हैं. ये जो फ्रंट का हिस्सा था डिमोलिश कर दिया गया है. ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह को इस पूरे एरिया को डिमोलिश किया गया है. अब जो दूसरा हिस्सा है, साइड का हिस्सा है, वहां पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है. तो ये देखिए 3 बुलडोजर जो है लगातार यहाँ पे चल रहे हैं और इसे डिमोलिश करने की जा रही है. प्रशासन ने कल ही एक बकायदा नोटिस देकर ये साफ कर दिया था कि वो अगर इस पर कार्रवाई खुद से बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जाता है तो इस पर बुलडोजर एक्शन होगा. और आज हम उसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है बुलडोजर एक्शन उस पर चल रहा है. हालांकि जो प्रॉपर्टी है ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा जो है उसका अवैध निर्माण था. इसका दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाते तस्वीरों के जरिए. देखिए ये दूसरा हिस्सा है जिसकी रजिस्ट्री बकायदा थी. तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं, यहाँ पे पुलिस के जवान, प्रशासन के जवान यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा. लेकिन इस हिस्से का दूसरा जो निर्माण था, जिसे अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहा जा रहा है, अवैध निर्माण जिसे कहा जा रहा है, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है. ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर के जरिए यहाँ पर इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है. तो ये बुलडोजर एक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, किस तरीके से बुलडोजर के जरिए इस पूरे बिल्डिंग को बुलडोज किया जा रहा है. यहाँ पे लगातार प्रशासन के मौजूद है. एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट था जो इलीगल कन्वर्जन था उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हिंदू लड़कियों को जो है वो बहला फुसला कर लब जिहाद के जरिए उनका धन परिवर्तन किया जाता था, कन्वर्जन किया जाता था, उनका निकाह कराया जाता था. और ये रैकेट जब खुलासा हुआ सैटरडे की शाम को, जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा है उसको एसटीएफ ने अरेस्ट किया था. उसके बाद पूरे मामले की जांच को जो है एटीएस को सौंप दी गई थी. एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है. कहा जा रहा है कि जिससे का मनी ट्रेल है, करीब 100 करोड़ रुपए का पूरा जो मनी ट्रेल जो है अब तक सामने आया है. लिहाजा ईडी और एनआईए एजेंसी जो है वो भी इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में ये इसका नेटवर्क फैला हुआ था. इतना ही नहीं, विदेशों तक इसके नेटवर्क जुड़े हुए खबर है.
यूएई में जो है वो भी इसका नेटवर्क था। जो इसकी कलीग थी, जो कोएट थी इसकी, जो इसकी सहयोगी है, वो भी जो है वो यहाँ पहुंची हुई, उसके साथ ही रहती थी। नीतू रोहरा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने और उसके पति ने 2019 से लेकर 2024 तक 19 बार जो है यूएई का टूर किया था। और दोनों पति पत्नी होते हुए भी दोनों हर बार अलग अलग जाते थे, सिर्फ एक बार साथ गए थे। इसके अलावा हर बार वो अलग अलग जाते थे और अलग अलग वापस आते थे। तो आखिर ये लगातार यूएई क्यों जा रहे थे, ये तमाम सवाल है, तमाम पहलू है। इसीलिए इसकी जांच जो है वो अब यूपी एटीएस कर रही है। और यहाँ पे जो है बुलडोजर एक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे बुलडोजर एक्शन जो है यहाँ पे चल रहा है और ये इसको तोड़ा जा रहा है, इस पूरे हिस्से को बुलडोजर के जरिए। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे जो बड़ा निर्माण है उसको बुलडोज इस वक्त किया जा रहा है। तो ये साइड का हिस्सा है जिसको तोड़ने के लिए यहाँ पे 3 बुलडोजर जो है वो लगाए गए हैं। All right, Vinod Mishra, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. We'll keep coming back to you for more on this. Thank you, Adeep, for your inputs as well. We will slip into a very, very short break right now. We'll be back with lots more. Stay with us.